and time. Hello friends, can you feel that the earth is moving? But you are standing where you were. We know that the speed of some vehicles on the road is slow and some fast. But what is speed? When all of you get up in the morning, go to school, eat food, study, I'm sure you look at me because I tell you the time. Let us find out through this video the relationship between speed, motion and time. The objectives of this video: A. To gather information about speed and movement. B. To understand the relation between speed and time. Ram, you have to take part in a race in the nearby village school tomorrow. Hurry up and sleep, otherwise you will not be able to wake up in the morning. Oh, how does this watch come to know each morning that it is time to wake me up? It wakes me up at the correct time. Kaki, please call Shyam. We have to go early, otherwise the bus will leave. Ram, Shyam has already left. Run and go. He must not have reached yet. The bus will leave. Let me run and go. If I had an aeroplane, I would have reached early. Oh, the bus just left. Shyam is sitting in the bus. It is 7 a.m. Shyam will reach before me. The next bus will come in 10 minutes. It looks like I will get late. Shyam would have reached. Oh, the bus in which he left has reached now. Hey Ram, you have already reached. Yes, it is strange. I left in the bus which came after you left, but I reached before you. I think your bus was faster than my bus. The distance from our village to this village is 10 kilometers. I reached in 30 minutes and you took 40 minutes. So it means that your bus took less time to cover a distance of 10 kilometers. Yes, because my bus did not stop anywhere. My bus also did not stop. Friends, the speed of the vehicles moving fast is more. To find out which vehicle is moving at a faster speed, we will have to know the distance travelled by them in a particular time. The distance travelled by objects in a given time helps us in deciding this. Are you ready for the race, Ram? Ready, children? I'm going to begin the count from 3. 3, 2, 1. Shyam, Mohan won the race. We have both come second. It means that both of us ran at the same speed. Come, let us ask Sir, how much time did we take to complete the race? Shyam and Ram, you took 4 minutes to complete the race, and Mohan took 3.2 minutes. I want to know who was faster, Ram or me? Children, whenever there is a race in your school, there is a starting point and an end point. The winner is the one who finishes this distance in the least time. To find out the speed of the object, we have to find how much distance it covers in a unit time. This is known as the speed of the vehicle. Therefore, you can find out the speed of a vehicle by finding out the distance it covered and the time taken to cover that distance. Therefore, speed is equal to distance divided by time. So if Shyam and Ram covered a distance of 100 meter in 4 minutes, then what was their speed? Children, it is important to take part in a competition. Winning and losing is part of the game. I think it was because of speed that I reached before you in the morning. Because the speed of my bus was more than the speed of your bus. We shall ask about the speed of the bus from the bus driver when we return home. Look, Ram, what is this? Sand is falling down when I turn it upside down. Children, this is an hourglass. When the ancient people did not have watches, they used this to find out the time.
It is so creditable, Shyam, that the people of the ancient times did not have watches, but they could tell the time by looking at the sunrise and sunset. Nowadays, there are so many different types of watches. Like our coach had the stopwatch with the help of which he was noting the time we took in finishing the race. Remember, we had read that the king of Jaipur had made the sun clock in Jantar Mantar? It will be interesting to find out how the watches tell us the correct time. We had studied that watches use the rotation motion, but the watches are so small, how is it possible for them to have the rotatory motion inside them? Driver uncle, can you tell us the speed of the bus? What happened, children? Do you have to reach somewhere quickly? No, actually we want to understand about speed. We wanted to understand how much time will it take us to reach home. Look, children, there is this device in vehicles which is known as speedometer. It tells us the speed the vehicle is moving at. Like the speed of this bus is 60 km per hour. If the bus is moving at a speed of 60 km per hour, then how much distance is it covering in 1 minute? Hey kids, let the driver brother drive the bus carefully. Tell me, how many minutes are there in 1 hour? 60 minutes. And your question was, how much distance would the bus cover in a minute? Didi, is 60 minutes to an hour. So if this bus is covering a distance of 60 km in an hour, it means that it will cover 1 kilometer in 1 minute. Correct answer. Do you know how the units are related to each other? Didi, the basic unit of time is seconds and the big units are minutes and hours. And what is the root unit of the speed? Didi, because speed is equal distance upon time, that's why meter per second is the basic unit of speed. Well done. And it is also expressed in other units, meter per minute or kilometer per hour. Can you tell how many seconds are in a day and how many hours in a year? I want to become a pilot when I grow up. The speed of plane is very fast. And I want to grow up to become a mathematician. And I am thinking that the speed of the rocket will be faster than the plane. I want to know more about this. Oh wow! Well done, children. So friends, if a bus or a vehicle is moving slowly, then we say that its speed is less. And if the same vehicle is moving fast, then we say its speed is more. In this way, we can say that by the speed of the object, we get to know how slowly or fast an object is moving. Now we can define it in such a way that the distance traveled by the object in unit time is called the speed of the object, such as 60 km per hour, 10 meter per second, etc. See you, friends. स्टार्ट करते हैं क्लास 7th के साइंस के चैप्टर 13 से मोशन एंड टाइम. ये पार्ट फर्स्ट है. इन क्लास 6th यू लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन. यानी कि 6th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था अलग अलग तरह के मोशंस के बारे में. ठीक है. यू लर्न दैट अ मोशन कुड बी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, इट कुड बी सर्कुलर और पीरियोडिक. हमने ये भी पढ़ा जो मोशन होता है वो एक स्ट्रेट लाइन में भी हो सकता है, सर्कुलर फॉर्म में भी हो सकता है और पीरियोडिक फॉर्म में भी हो सकता है. ये सब कुछ हम 6th क्लास में पढ़ चुके हैं. कैन यू रिकॉल दीज 3 टाइप्स ऑफ मोशन? क्या आप इन 3 टाइप्स के जो मोशन है इनको रिकॉल कर सकते हो? नाउ टेबल 13.1 गिव्स सम कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ मोशन. यहाँ पे आपको कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स मिलेंगे मोशन के. अब आपको हर एक मोशन को आइडेंटिफाई करना है.
ठीक है, यहाँ पे कुछ मोशंस हैं, आपको बताना है कि ये स्ट्रेट है, सर्कुलर है या पीरियोडिक है। ये इससे क्या होगा, आपने जो भी पढ़ा है वो एक बार को दोबारा से रिकॉल हो जाएगा। इट इज़ कॉमन एक्सपीरियंस दैट द मोशन ऑफ सम ऑब्जेक्ट इज स्लो वाइल द सम अदर इज़ फास्ट। ये नॉर्मल चीज़ होती है कि कुछ चीज़ों का जो मोशन होता है वो बहुत स्लो होता है और कुछ का काफ़ी फास्ट होता है। ठीक है, कोई चीज़ बहुत स्लो तरीके से मूव करती है, कुछ फास्ट तरीके से मूव करती है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट स्लो और फास्ट। वी नो दैट सम व्हीकल्स मूव फास्टर देन अदर। हमें पता है कि कुछ व्हीकल्स ऐसे होते हैं जो दूसरों से क्या होते हैं, फास्ट मूव करते हैं। नाउ even the same vehicle may move faster or slower at different times। हो सकता है सेम ही व्हीकल फास्ट भी मूव करे, एक का वो फास्ट मूव कर रहा है व्हीकल और एक का वो स्लो मूव कर रहा है अलग अलग टाइम्स पे, मतलब या फिर कोई पर्सन अगर ड्राइव कर रहा है तो कभी वो स्लो चला रहा है, कभी वो फास्ट चला रहा है। आपको ऐसे 10 ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट बनानी है जो स्ट्रेट पाथ पे मूव करते हैं और आपको इस मोशन को, जो भी मोशन हुआ है इन ऑब्जेक्ट का, उसको ऐसे बताना है कि वो स्लो मूव कर रहा था या फास्ट मूव कर रहा था। ठीक है, हाउ डिड यू डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज मूविंग स्लो एंड विच वन इज मूविंग फास्ट। आप ये कैसे डिसाइड करोगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट स्लो मूव करता है, कौन सा ऑब्जेक्ट फास्ट मूव करता है। If vehicles are moving on a road in the same direction, we can easily tell which of them is moving faster than the other। यानी कि आप एक सिचुएशन इमेजिन करो जहाँ पे बहुत सारे व्हीकल एक रोड पे सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आप उसको देख के ही बता सकते हो कि कौन सा है वो फास्ट जा रहा है और कौन सा नहीं जा रहा। लेट अस लुक एट द मोशन ऑफ व्हीकल्स मूविंग ऑन अ रोड। अब आप क्या करोगे, आप लोग देखोगे कि व्हीकल्स का जो मोशन है वो कैसा है। ठीक है, लुक एट द फिगर 13.1। आप 13.1 देखो, ये रही फिगर। इसमें क्या करना है, इट शोज द पोजीशन ऑफ सम व्हीकल्स मूविंग ऑन अ रोड इन द सेम डायरेक्शन एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम। यहाँ पे इस फिगर में व्हीकल्स की डायरेक्शन आप देख सकते हो कि वो कैसे मूव कर रहे हैं। नाउ लुक एट फिगर 13.2। अब आप क्या करोगे, 13.2 को देखोगे। यहाँ पे आपने जो फिगर थी उससे थोड़ी सी अलग हो चुकी है। ठीक है, इसमें क्या है, सेम व्हीकल है लेकिन कुछ टाइम के बाद उनकी लोकेशन जो है वो चेंज हो चुकी है। अब इससे आपको क्या करना है, 2 क्वेश्चन के आंसर करने हैं। विच व्हीकल इज मूविंग द फास्टेस्ट ऑफ ऑल, विच वन ऑफ देम इज मूविंग द स्लोएस्ट ऑफ ऑल। यानी इनमें से वो कौन सा व्हीकल है जो बहुत फास्ट मूव कर रहा है और कौन सा व्हीकल है जो बहुत स्लो मूव कर रहा है। द डिस्टेंस मूव्ड बाय ऑब्जेक्ट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम कैन हेल्प अस टू डिसाइड विच वन इज फास्टर और स्लोअर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ। एक डिस्टेंस अगर कोई ऑब्जेक्ट कवर करता है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जिसने कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर करी है, एक थोड़े से टाइम में वो थोड़ा मूव करा, तो हमें वो उसकी जो डिस्टेंस उसने कवर करी है उससे पता लगा सकते हैं कि वो व्हीकल फास्ट मूव कर रहा था या स्लो मूव कर रहा था। अगर किसी व्हीकल ने बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर ली तो मतलब वो ऑब्वियसली फास्ट मूव कर रहा था। कोई व्हीकल, सेम व्हीकल अगर उससे कम डिस्टेंस, मतलब ज़्यादा डिस्टेंस उसने कम टाइम में कवर करी तो मतलब वो फास्ट मूव कर रहा है। और दूसरा है जो बहुत टाइम ले रहा है और डिस्टेंस इतनी कवर भी नहीं हुई, तो उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो स्लो मूव कर रहा है। जैसे कि आप इमेजिन करो, आप अपने फ्रेंड को बस स्टैंड पे मतलब बाय कहने के लिए गए हो। सपोज यू स्टार्ट पेडलिंग योर बाइसाइकिल एट द सेम टाइम एज द बस बिगेन्स टू मूव। यानी जैसे ही आपकी जो बस है जो वो मूव करनी शुरू करती है और आप भी अपनी साइकिल चलाना शुरू कर देते हो, जो डिस्टेंस आपने 5 मिनट में कवर करी वो बस के डिस्टेंस के मुकाबले बहुत कम होगी। मतलब आप बहुत पीछे रह चुके होगे, बस बहुत आगे निकल चुकी होगी। सो इससे क्या हुआ, हम ये पता लगा सकते हैं कि बस ने बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर करी 5 मिनट के अंदर और आपने 5 मिनट के अंदर बहुत कम डिस्टेंस कवर करी। तो इससे क्या आइडिया लगा कि जो बस है वो फास्ट मूव कर रही है एज कम्पेयर टू बाइसाइकिल। ओके, वी ऑफन से दैट द फास्टर व्हीकल हैज़ अ हायर स्पीड। हम ये भी कहते हैं कि जो व्हीकल बहुत फास्ट मूव करता है उसकी स्पीड बहुत हाई होती है। ठीक है, कोई व्हीकल अगर बहुत फास्ट मूव कर रहा है तो उसकी स्पीड कैसे होती है, हाई होती है। इन अ 100 मीटर रेस इट इज़ ईजी टू डिसाइड हु स्पीड इज़ द हाईएस्ट। यानी कि अगर एक 100 मीटर की रेस होगी तो आप ये देख के पता लगा सकते हो कि कौन है जिसकी स्पीड सबसे ज़्यादा है। जो सबसे पहले सबसे कम टाइम में जो 100 मीटर को कवर कर लेगा, यानी सबसे कम टाइम में जिसने 100 मीटर कवर कर लिया, उसको देखते ही आप कह दोगे कि वो फास्टेस्ट चला रहा था या उसकी हाईएस्ट स्पीड है। ठीक है, नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्पीड, लेट्स स्टार्ट विद द स्पीड।
यू आर प्रोबेबली फेमिलियर विद द वर्ड स्पीड. स्पीड आपने बहुत बार सुना होगा आज तक. इससे पहले के एग्जाम्पल में अ हायर स्पीड सीम्स टू इंडिकेट दैट अ गिवन डिस्टेंस हैज़ बीन कवर्ड इन शॉर्टर टाइम और अ लार्जर डिस्टेंस कवर्ड इन अ गिवन टाइम. देखो, अगर हम बोल रहे हैं हाई स्पीड, तो इसका मतलब है जो हाई स्पीड है वहाँ पे जो डिस्टेंस कवर करी है वो कम टाइम में. फॉर एग्जाम्पल, कोई एक व्हीकल ने वो डिस्टेंस कम टाइम में कवर कर ली, तो मतलब उसकी स्पीड दूसरे व्हीकल से ज़्यादा थी. ठीक है. द मोस्ट कन्वीनियंट वे टू फाइंड आउट विच ऑफ द टू और मोर ऑब्जेक्ट इज मूविंग फास्टर इज टू कंपेयर द डिस्टेंसेज मूव देम बाय देम इन अ यूनिट टाइम. अगर आपको ये देखना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट फास्ट मूव कर रहा है, तो बस ये देखो कि डिस्टेंस दोनों ने टाइम में कितनी मतलब कवर करी है, पर्टिकुलर डिस्टेंस कितने टाइम में उन्होंने कवर करी है. जैसे ही आप ये चीज़ें पता लगा लोगे, आपको अपने आप ही स्पीड का पता चल जाएगा. Thus, if we know the distance covered by two buses in 1 hour, we can tell which one is faster. यानी कि अगर आपको पता है कि कितनी डिस्टेंस कवर करी है 2 बस ने 1 घंटे में, तो आप बता सकते हो कि कौन सी जो क्या कहते हैं बस है वो फास्ट चल रही है. We call the distance covered by an object in a unit time as the speed of the object. We can call the distance covered by an object in a unit time as the speed of the object. यानी कि जो डिस्टेंस एक पर्टिकुलर यूनिट टाइम में कवर करी है किसी भी ऑब्जेक्ट ने, हम उसको उसकी स्पीड बोलते हैं. तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. ओके. व्हेन वी से दैट अ कार इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, जब हम ये बोलते हैं कि एक कार उसकी स्पीड कितनी है 50 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब है कि वो 50 किलोमीटर 1 घंटे में कवर कर लेगी. However, a car seldom moves with a constant speed for 1 hour. ऐसा नहीं होता कि वो constant speed के साथ ही कार मूव करती रहती है, कम ही होता है. ऐसा होता है कि वो स्टार्ट धीरे धीरे करती है, उसके बाद वो अपने आप ही स्पीड पकड़ लेती है. ठीक है. सो व्हेन वी से दैट द कार हैज़ अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, वी यूजुअली कंसिडर्ड ओनली द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय इट 1 आवर. यानी कि जब हम ये बोल रहे हैं कि कार 50 किलोमीटर पर आवर ट्रैवल कर रही है, तो बेसिकली हम क्या देख रहे हैं, जो टोटल डिस्टेंस उसने कवर करी है 1 घंटे में. वी डू नॉट बॉदर वेदर द कार हैज़ बीन मूविंग विद द कॉन्स्टेंट स्पीड और नॉट ड्यूरिंग द आवर. हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जो कार है वो कॉन्स्टेंट स्पीड से मूव कर रही थी या नहीं कर रही थी. द स्पीड कैलकुलेटेड हेयर इज द एक्चुअली द एवरेज स्पीड ऑफ द कार. जो स्पीड यहाँ पे हमने कैलकुलेट करी है वो कार की एवरेज स्पीड है. इन दिस बुक वी शैल यूज द टर्म स्पीड फॉर एवरेज स्पीड. और अब हम इस बुक में क्या करेंगे, जो स्पीड टर्म है मतलब स्पीड के लिए हम लोग एवरेज स्पीड यूज़ करेंगे. सो फॉर अस द स्पीड इज़ द टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन. तो व्हेन वी टॉक अबाउट द फॉर्मूला, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, कितना डिस्टेंस कवर हुआ है और कितने टाइम में हुआ है. तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन. Okay, in everyday life we seldom find objects moving with a constant speed over long distances or for long duration of time. ऐसा कम ही होता है कि हमें कोई ऑब्जेक्ट मिलता है जो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, या फिर जो मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन में या लॉन्ग डिस्टेंसेस कवर कर रहा है लेकिन स्पीड कांस्टेंट है. ऐसा नहीं होता. अब देखो, अगर किसी की स्पीड, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड जो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है वो चेंज होती रहती है. फिर से सुनो, किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड जो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है वो चेंज होती रहती है, तो हम ऐसे मोशन को नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं. और अगर हम बात करें एक ऑब्जेक्ट अगर एक स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करता रहता है, उसकी स्पीड सेम रहती है, तो वी कॉल इट यूनिफॉर्म मोशन. तो यूनिफॉर्म मोशन जब स्ट्रेट लाइन में मूव करते हुए उसकी स्पीड कांस्टेंट रहती है, और नॉन यूनिफॉर्म जब उसकी स्पीड चेंज होती रहती है. इस केस में जो एवरेज स्पीड है वो कैसी है, एक्चुअल स्पीड के बराबर है. मतलब कि एक्चुअल स्पीड, क्यों, देखो ऊपर हमने देखा था ना कि हम एवरेज स्पीड लेते हैं क्योंकि चेंज होती रहती है, बट यहाँ पे जो एक्चुअल स्पीड है वही उसकी एवरेज स्पीड है. We can determine the speed of a given object once we can measure the time taken by to cover a certain distance. हम किसी की भी स्पीड निकाल सकते हैं अगर हमें पता है कि उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी है कितने टाइम में. तो we can easily take out the speed. In class 6th you learned how to measure distances, but how do we measure time? Let us find out. हमने 6th में ये देखा था कि डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं, ठीक है, बट अब हम लोग सीखेंगे कि हम लोग टाइम कैसे मेजर करते हैं. ओके.
तो ये था हमारा पार्ट 1 चैप्टर 13 का, दैट इज़ मोशन एंड टाइम। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। पार्ट 2 एंड 3 के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, आपको वहाँ मिल जाएंगे। और 7th क्लास के और चैप्टर्स देखने के लिए और सब्जेक्ट्स के चैप्टर देखने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, वरना मेरे पेज पर डायरेक्टली होम पेज पे जाइए या प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ आपको क्लास के अकॉर्डिंग प्लेलिस्ट मिल जाएगी और सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग चैप्टर मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।